So welcome learners, welcome to my new video. So today we will learn the topic control structure in C++. Okay, so let's begin with the topic. So here is the basic definition of control structure in C++. So let's read it. Control structure in C++ is a way to manage the flow of program based on condition or loop. So control structure होता है C++ में ये हमारी मदद करता है कोड के फ्लो को मैनेज करने के लिए कि कोड किस प्रकार से एग्जीक्यूट होगा, किस प्रकार से उसका आउटपुट मिलेगा, हमको कंडीशंस के हिसाब से मिलेगा या लूप्स के हिसाब से मिलेगा। इससे हम कोड के एग्जीक्यूशन को भी मैनेज कर सकते हैं कि कोड कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, कोड कंडीशन के हिसाब से होगा। हमारे पास बेसिकली तीन मेन टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट वन इज सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर में हमारा जो कोड है वो वन बाय वन वर्क करता है। ओके, ऑर्डर में एक के बाद एक, पहले एक कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार से। द सेकेंड वन इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर। So in selection structure we have basically the code of if and else. So in selection structure it will select the condition. Okay, it work on the basis of condition. If the condition will be true, it will execute the code block of if block, and if the condition will be false, it will execute the code block of else block. Okay, now the third one is loops. So in loops, we have three main types of loops: for loop, while loop, and do while loop. And loops are used to repeat the code again and again. Okay. Now let's move to the next slide. So we have sequence structure flowchart. So let's see the working, how the sequence structure work. So in sequence structure, the code first will take the entry, it will do initialization like value, and then code 1 will execute, and then code 2 will execute, and then it will exit. Like this, as much as code you can give, it will execute one by one. Okay, have you seen here code 1 is execute at a time, then code 2 is execute at a time. So sequence structure basically work one by one, okay, in order. So let's move to the next slide. So we have selection structure flowchart. So let's see the selection structure flowchart. In selection structure, first it will take the entry, the initialization. Okay, then it will check the condition. If the condition will be true, so the if block code execute. Okay, the code in the if block will execute. Okay, and then we will get the if block code output and it will exit. And let's see the else block code execution condition. First it will take entry and it will check the condition. If the condition will be false, so it will execute else block code, and we will get the else block code output and it will get exit. Now we have loop flowchart. So in loop flowchart, first it will initialize the value and take the entry, and then it will check the condition. If the condition will be true, the code will execute, and then it will have increment or decrement anything in the value, and then again it will work repeatedly in loop until the value will get false. Okay, we will get the code execution according to the condition we have given until the value will become false. Okay, so let's move to the our VS Code compiler. So we will see the execution of this code so you will understand it. So hello everyone. So now let's see the code execution in our VS Code compiler. So let's first make the file. I will making the file with new 2.cpp name. Okay, we have made it a file. Now let's see the code of sequence structure. So I am writing a comment here: sequence structure code.
Okay, so now we will make the sequence structure code. So let's start making it. Has include IO stream using namespace std. Okay, now we will type int main. Main is a type of starting point. Okay, int main, then parenthesis, and then make the body of the code. Okay, so first we will give the code 1. So we will give it first code is cout hi. Okay, and then handle. We will use handle for new line. Okay, for that the output will come in new line. Then cout hello. Okay, and l, and then return 0. So let's see after running this code what output we will get. There is no output. Let's see after running it. So we had got two output, hi and hello. You have seen, just to see it, we have got two output, hi and hello, in our terminal output. Okay, this. So the code will execute one by one. Okay, so in sequence structure the code is execute one by one in sequence, in order. Okay, there is no loops or no conditions in the sequence structure. It will run only in order, in one by one. Okay, in sequence. So here is the code of sequence structure. Now let's see the code of the selection structure. So we will make new file naming selection 22.cpp. Okay, now we will make the code of selection structure, means the code of if else. So I am writing comment here, selection structure code. Okay, so let's see the selection structure code. So we will type first the structure has include IO stream using name space std. Okay, then int main parenthesis, then body of the code. So first we will make the syntax of the selection structure, so we will learn it more easily. Okay, I will clear the terminal. Okay, so here is the syntax of the selection structure code I am making. So if so first so here is the syntax of the selection structure code I am making. So first we will initialize the value like int I. Okay, then cin I, then if I is less than 10, cout hi. Okay,
then else. Okay, so here is the basic code of selection structure code. Okay, so here we have written int main, and then we have first initialized the value int I. We have given a data type integer and a variable I. Okay, so we have written c in I. So we have written c in I value or get the user input value of I. Okay, so we have written if, and in parenthesis we have written condition. So if I is less than 10, अगर I की वैल्यू 10 से छोटी रही तो ये हमको हाई प्रिंट कर देगा, और एल्स अगर I की वैल्यू 10 से ज़्यादा बड़ी रही तो ये हमको हेलो प्रिंट करके देगा। ओके, देखो यहाँ पर हमने इंट आई लिखा है और फिर सी इन आई लिखा है। सी इन आई इसलिए लिखा है जिससे हम यूज़र से इनपुट ले सके आई की वैल्यू। सो अगर आई की वैल्यू 10 से छोटी रही तो हमको हाई आउटपुट मिलेगा, और अगर आई की वैल्यू 10 से बड़ी हो गई तो हमको हेलो आउटपुट मिलेगा। सो चलो यहाँ पर हम कोड रन कर बताते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर इनपुट देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 1। सो आई की वैल्यू अभी 10 से छोटी दे रहा हूँ मैं, मतलब 1। 10 जो भी 1 होता है वो 10 से छोटा होता है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आउटपुट वी विल गेट आफ्टर गिविंग द इनपुट 1। सो हमने 1 इनपुट दिया था तो हमको आउटपुट मिला हाई। हाई हमको क्यों मिला? क्योंकि जो भी 1 है वो 10 से छोटा होता है, इसलिए हमको हाई मिला। ठीक है, अब हम टर्मिनल क्लियर करते हैं और अब हम आई की वैल्यू 10 से बड़ी देकर देखते हैं। सो हमने आई की वैल्यू दी है 11। ओके, सो आई की वैल्यू 11 देने पर हमको जो आउटपुट मिलेगा वो हेलो मिलेगा। सो चलो एंटर प्रेस करते हैं और ये देखो हमें हेलो आउटपुट मिल गया। क्यों? क्योंकि हमारी जो भी आई की वैल्यू थी वो 10 से ग्रेटर देन थी। ओके, 10 से बड़ी आई की वैल्यू थी, तो हमारा एल्स वाला कोड आउटपुट आ गया। ओके, सो यहाँ पर जो भी कोड एग्जीक्यूट हुआ है वो उसकी कंडीशन इसलिए हमको हाई और हेलो मिल रहा है, क्योंकि देखो हमको हाई कब मिल रहा है? जब कंडीशन ट्रू हो रही है। मतलब कंडीशन ट्रू कब हो रही है? जब आई की वैल्यू 10 से छोटी है। मतलब आई की वैल्यू हम 10 से छोटी कुछ भी रख देंगे, मान लो हम यहाँ पर 10 से छोटा 9 भी रख देंगे अगर, तो भी हमको हाई मिलेगा आउटपुट, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पर। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी, मान लो कि आई की वैल्यू 10 से बड़ी है, तो हमको हेलो आउटपुट मिलेगा। ओके, मान लो हमने आई की वैल्यू 10 से बड़ी दी, यहाँ पर आई की वैल्यू दी हमने 11। ओके, तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो हेलो मिलेगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो रही है, तो एल्स ब्लॉक का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो चलो अभी हम यहाँ पर देखते हैं फॉर लूप का कोड। किस चीज़ का? फॉर लूप। सो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं फॉर लूप का कोड। सो जो भी फॉर लूप का कोड है उसका पहले आपको सिंटेक्स बताता हूँ, फिर बाद में कोड बताऊँगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक इंटीजर डेटा टाइप लिया है और एक वेरिएबल लिया है एक्स। तो यहाँ पर हम फॉर लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस के बीच में सबसे पहले x इक्वल टू 3 मतलब वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। मतलब यहाँ पर ये जो है वो इनिशियलाइजेशन हो रहा है। फिर x इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 20 मतलब ये यहाँ पर हमने कंडीशन दी है। और देन x प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट करो। ठीक है, और ये जो बॉडी है इसमें लिखा है हमने सी आउट एक्स, मतलब x की वैल्यू हमें आउटपुट के लिए चाहिए। तो चलो यहाँ पर हम लोग अब कोड को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप दिया है और एक वेरिएबल है x। फॉर x इक्वल टू 3, यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है 3 और हमारी कंडीशन क्या है? x इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 20। जब तक x की वैल्यू 20 से छोटी रहेगी और 20 के इक्वल ना हो जाए तब तक हमारा इंक्रीमेंट होता रहेगा। और हमने बॉडी में लिखा है कि x की वैल्यू हमको चाहिए। तो चलिए लूप को रन कर देखते हैं। सो ये देखो हमने स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी हमारी 3, तो यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे हुई 3 से,
फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और जब तक वैल्यू 20 ना हुई, क्योंकि हमारी कंडीशन थी जब तक वैल्यू 20 के इक्वल ना हो जाए इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो यहाँ पर 3 से स्टार्टिंग हुई और जब तक वैल्यू 20 ना हुई तब तक इंक्रीमेंट हुआ। 20 से एक भी ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी कंडीशन देंगे उसके हिसाब से कोड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। ओके, यदि हम यहाँ पर 30 लिख देते हैं तो यहाँ पर ये लूप कहाँ तक चलेगा, 3 से स्टार्ट होगा और 30 तक वैल्यू देगा। ठीक है, ये देखो 3 से स्टार्ट हुआ है और 30 तक वैल्यू दिया है। सो यही वर्किंग थी फॉर लूप की। सो यहाँ पर अब हम वाइल लूप का कोड समझेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक इंटीजर डेटा टाइप लिया है और एक वेरिएबल लिया है x, जिसमें वैल्यू क्या दी है 1। सो यहाँ पर हम अब इसका सिंटेक्स देखेंगे वाइल लूप का। तो सबसे पहले हमने लिखा है वाइल और देन पैरेंथेसिस के अंदर हमने कंडीशन दी है कि x की वैल्यू जब तक 10 से छोटी ना हो जाए और 10 के इक्वल ना हो जाए। ओके, और देन बॉडी दी है, बॉडी ऑफ द कोड इन करली ब्रेसेस। सो यहाँ पर लिखा है हमने सी आउट हाई एंड एल और एक्स प्लस प्लस। एक्स प्लस प्लस मीन्स ये इंक्रीमेंट करता जाएगा। ओके, सो यहाँ पर जो भी कोड है इसे रन कर बताते हैं। सो यहाँ पर हमको 10 बार हाई मिल गया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन दी थी वाइल एक्स इज स्मॉलर देन 10 एंड इक्वल टू 10। सो यहाँ पर हमारी वैल्यू की स्टार्टिंग थी 1 से और एंडिंग क्या थी 10 पे। तो हमको 10 बार हाई मिल जाएगा और x की वैल्यू प्लस प्लस कर इससे इंक्रीमेंट होता है। समझे? मतलब वाइल जब तक x की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी हमको हाई आउटपुट चाहिए। सो x की वैल्यू 10 से छोटी जब तक रहेगी, मान लो यहाँ पर x इक्वल टू 9 कर देते हैं। हमने x की वैल्यू अब यहाँ पर 9 दे दी है और जो 10 है वो, जो 9 है वो 10 से छोटा रहेगा, तो हमको दो बार आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 8 दे देते हैं तो हमको 3 बार आउटपुट मिलेगा हाई, क्योंकि 8 जो है वो 10 से छोटा है। कितना छोटा है? 3 टाइम्स छोटा है। तो यहाँ पर हमको 3 बार हाई मिल जाएगा। सो इसी तरीके से वाइल लूप का सिंटेक्स होता है, इस कोड को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे डू वाइल लूप। ओके, डू वाइल लूप का कोड। सो यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ डू वाइल, जिससे हम लोगों को कोड में समझने में आसानी होगी कि ये किसका कोड है। सो ये है डू वाइल का कोड, डू वाइल कोड। ओके, सो यहाँ पर जो भी डू वाइल का कोड है इसमें आप देख सकते हैं हमने लिखा है इंट आई इक्वल टू 1। सो हर कोड में हम लोग सबसे पहले एक इंटीजर वैल्यू देते हैं और आई एक वेरिएबल होता है जो कि वैल्यू होल्ड कर रहा है 1। सो यहाँ पर लिखा है हमने डू मतलब करो। तो ये क्या करेगा, सी आउट हाई हमको आउटपुट देगा हाई और वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा। वाइल मतलब जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी ना रहे डू, ये हमको आउटपुट देगा हाई। सो सबसे पहले ये हमको आउटपुट देता है एंड देन कंडीशन चेक करता है। डू वाइल लूप में ये होता है। तो चलो इस कोड को हम रन कर देखते हैं। सो क्या आउटपुट आता है। सो यहाँ पर हमको आउटपुट आया है 9 टाइम्स हाई। 9 टाइम्स हाई क्यों आया है? क्योंकि हमने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है। ओके, सो आई होप डू वाइल लूप भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर सेम सिंटेक्स रहेगा। इसमें सबसे पहले क्या है, डू मीन्स करो और सी आउट मीन्स हाई। सो ये क्या करेगा, आउटपुट देगा हमको हाई। वाइल मतलब जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी ना हो। ओके, थैंक यू।